سب سے پہلے بریکنگ نیوز آپ کو دیں۔ پاکستان نے بھارتی پرچم بردار بحری جہاز کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ فوری طور پر بند کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق وزارت بحری امور نے باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق کوئی پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھارت نے پاکستان سے براہ راست اور بالواسطہ ہر طرح کی درآمدات پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ بھارت پاکستان کی جانب سے کوئی خط اور پارسل بھی وصول نہیں کرے گا۔ اسی متعلق مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم سے۔ اشرف ملخم، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں مزید؟ جی بالکل، ہماری اطلاع کے مطابق وفاقی وزیر جو ہیں میری ٹائم جنید انوار چودھری، ان کی ہدایت پر یہ ساری کارروائی کی گئی، جس کے مطابق حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جو کہ ڈائریکٹر شپنگ ہے آصف ہارون، ان کے دستخطوں شروع کیا گیا۔ اس کے مطابق کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جہاز کسی بھی بھارتی بندرگاہ پر نہیں جائے گا، اور اسی طرح بھارتی جہاز کوئی بھی کسی قسم کا کاروبار بھارتی جہاز کے ساتھ نہیں ہوگا، یا کسی بھی ایسا جہاز جس پہ بھارت کا پرچم ہو وہ پاکستان کے کسی بھی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہو سکے گا۔ تاہم اس میں بھی کہا گیا ہے کسی سلسلے میں کوئی ایگزمپشن ضرورت ہوگی وہ ڈے ٹو ڈے بیس پر یا ضرورت بیس پر دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال فوری طور پر پاکستان کی تمام بندرگاہوں پر انڈیا کے تمام جہازوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، جس میں جو آفیشلی 3 وزارتوں کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے، جس میں خاص طور وزارت دفاع، وزارت میری ٹائم اور وزارت جو خارجہ امور، اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ جو 4 پاکستان کے اہم دفتر ہیں اس حوالے سے کراچی پورٹ ٹرسٹ، پورٹ کاسٹم اتھارٹی کراچی، گوادر پورٹ اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کے چیئرمین ہیں، ان کو بھی یہ اطلاع دے دی گئی ہے کہ بھارت کا کوئی جہاز کسی بھی طرح پاکستان کی بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی جو پرنسپل آفیسر ہیں مرکنٹائن میری ٹائم ڈپارٹمنٹ کے، ان کو بھی ایک خط کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اور اس پر عمل درآمد اس فوری اہم طور خبر پر سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے اشرف ملخم، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تار اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ دیں گے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو قومی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی، دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں پاک بھارت موجودہ صورتحال زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ پاکستان نے ابدالی ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی میزائل زمین سے زمین پر 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے کہا ہے کہ ابدالی میزائل ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان اپنی سلامتی کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ مودی اگر پچھلے تجربے بھول گیا ہے تو آج کا تجربہ یادداشت تازہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ مودی صاحب، آپ نے آج سن لیا ہوگا، اگر نہیں سنا تو میڈیا پہ دیکھ لیں، ابدالی میزائل کا آج تجربہ ہوا ہے، کامیاب تجربہ۔ کہ ابدالی میزائل جو ہے اس میں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ یہ تجربہ آج اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے، اگر پہلے سے کیے ہوئے تجربوں کو تم بھول چکے ہو تو تمہیں یہ دوبارہ یاد آ جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ابھی بھارت کی جانب سے خطرہ کم نہیں ہوا ہے، لیکن بھارت کو پتا ہے کہ اگر کچھ کیا تو پاکستان سے منہ توڑ جواب ملے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دنیا کے اہم ممالک رابطے میں ہیں، ان کی کوشش ہے کہ پاک بھارت تنازع نہ بڑھے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش نہ کرتا تو عالمی بیانات جارحانہ ہو سکتے تھے۔ چین کے بعد ترکی نے بھی بھارتی جارحانہ بیانات پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ نے بھی پہلگام واقعے پر غیر جانبدار تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کر دی۔ ترک سفیر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں امن کے لیے تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پہلگام تحقیقات میں ترکی کی شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے فون پر گفتگو میں سوئس وزیر خارجہ نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات میں تعاون کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنے کی بات کی۔
उधर रूस ने भारत पर जोर दिया है कि वो पहलगाम हमले के तनाज़े में पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दोतरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करे। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा सरगेई लावरोव ने भारतीय हममनसब जयशंकर से गुफ्तगू में शिमला मुआहदे और लाहौर अग्रीमेंट का हवाला दिया और कहा कि दोनों मुल्क हालिया कशीदगी को ख़त्म करने के लिए सियासी और सफारतकारी के जरिए आपस में बात करें। भारतीय प्रोपेगेंडे का पाकिस्तान ने बरवक्त जवाब दे दिया। भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया था कि आज़ाद कश्मीर में केल, अटमकाम, लीपा, फॉरवर्ड कहोटा और कोटली समेत कई इलाकों में दहशतगर्द ग्रुप्स के कैंप कायम हैं। पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया को उन इलाकों का दौरा करा दिया। इस तरह भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को झूठा साबित कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जिन इलाकों में दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा किया था, भारत वहां जारिहत की कोशिश कर सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क को दिफा के लिए आसिम मुनीर की शक्ल में मर्द मोमिन भी मैसर है। वो हाफिज़ कुरान भी हैं, पक्के मुसलमान भी हैं और पाकिस्तान पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं। मुल्क को के दिफा के लिए एक मर्द मोमिन भी मैसर है। आसिम मुनीर वो हाफिज़ कुरान भी है और एक पक्का मुसलमान भी है और पाकिस्तान की सालमियत और दिफा पे मर मिटने का जज्बा रखता है। पहलगाम हमले पर भारतीय हुकूमत की इंतजामी और इंटेलिजेंस नाकामियों पर सवाल उठाने वाले भारतीय सहाफ़ी, सियासी मुबस्सिरीन, मिज़ानिगार भी मोदी सरकार के अताब से महफूज नहीं रहे। मुतादिद अफराद पर तखरीबी सरगर्मियों के मुजरिमाना इल्ज़ामात आयद कर दिए। भारतीय मीडिया की ख़वातीन फोरम नेटवर्क ऑफ विमेन इन इंडिया की शदीद मज़म्मत। कहा, मीडिया और शहरियों का हुकूमत से सवाल करना जमहूरी हक़ है। तनकीद और इख्तलाफ राय पर संगीन इल्ज़ामात आयद करना गैर जमहूरी और आमिराना रवैया है। भारतीय हुकूमत सियासी मुबस्सिरीन पर से अलहदगी पसंदी या मुल्क दुश्मनी जैसे इल्ज़ामात फौरी हटाए। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि भारत अपनी इंतज़ामी कोताहियों से तवज्जो हटाना चाहता है। मकबूजा कश्मीर में अपने मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान खुलूस नीयत से पहलगाम वाक़ई की तहकीकात में शामिल होना चाहता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। दुनिया भर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर कर रहे हैं। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली का कहना है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मज़म्मत और तहकीकात का मुतालबा किया है। तवक्को है कि चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें पहलगाम तहकीकात में हिस्सा लेंगी। भारत के जंगी इक़दाम का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक का कहना है कि भारत पानी के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। मकबूजा कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत को ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से जेलों में डाला जा रहा है। माओं को बच्चों से जुदा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस ले। भारतीय हुकूमत ने IMF के लिए अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यन को वापस बुला लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुब्रमण्यन को 3 साला मुद्दत मुकम्मल होने से 6 माह पहले बुलाया गया। सरकारी तौर पर कृष्णा को हटाए जाने की वजूहात नहीं बताई गईं। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें। सिंध में हैदराबाद, जामशोरो, टंडोलायार समेत दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तेज़ बारिश से हैदराबाद शहर के 140, टंडोलायार और टंडो मोहम्मद खान में 80 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मकान की छत और दीवारें गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ बादल पर से शहर की 140 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिसके बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तेज हवाएं चलने से मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड्स, कच्चे मकानात की छतें, दीवारें गिर गईं। जामशोरो, टंडो अल्लायार, टंडो मोहम्मद खान में भी बारिश होते ही मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। ठट्टा में तेज हवाओं से शादी की तकरीब में शामियाने उखड़ गए। मटियारी में गिरदालूद तूफान से आम के बागात को नुकसान पहुंचा। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई।
पंजाब के शहर भक्कर, डीजी खान, लोधरा, मियावाली समेत दीगर शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिजिटल बटन दबाकर अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम उनके दिल के बहुत करीब है। बेघर अफराद को छत की फराहमी नवाज शरीफ का विजन है। नवाज शरीफ लोगों के घर की तकमील का सुनकर बहुत खुश होते हैं। ये 34,000 घर नहीं बल्कि दुआएं हैं। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी के बाद अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिजिटल बटन दबाकर अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि 19 ज़िला की 23 हाउसिंग स्कीमों में पहले मरहले में बेघर शहरियों को 3-3 मरले के 2000 प्लाट मुफ्त दिए जाएंगे। कुरानंदाजी में प्लाट हासिल करने वाले खुशनसीब कर्ज भी हासिल कर सकेंगे। पहले फेज़ में जेहलम, पत्तोकी, मामू कांजन, लोधरा, रेनाला खुर्द में मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि बेघर अफराद के लिए हर रोज़ मजीद 300 घर बनने लगे। 6 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर बन रहे हैं। 2,000 मुकम्मल भी हो चुके हैं। नवाज शरीफ लोगों के घर की तकमील का सुनकर बहुत खुश होते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि अपनी छत अपना घर के लिए आसान तरीन किस्त और 3 माह का ग्रेस पीरियड मुकर्रर किया गया। कर्जों की वापसी भी शुरू हो चुकी। सूबे में बहुत से लोगों के पास घर बनाने के लिए ज़मीन है न पैसे। आज तक जितनी भी हुकूमतें रहीं अपने अदवार में 34,000 घर भी नहीं बना सके। अपने घर से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता है। कहना आसान है मगर आम आदमी के लिए घर का असूल बहुत मुश्किल है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 से 10 मिनट तक के प्लाट मालकान कर्ज के लिए दरख्वास्त भी दे सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सनत व तिजारत हारून अख्तर खान का कहना है कि कारखानों का जाल बिछाए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अगले 10 साल तक तरक्की की शरह 5 से 6% रहना ज़रूरी है। इस बार पहली सनती पॉलिसी ला रहे हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ मुरतब कर रहे हैं। छोटे कारोबार को फ़रोग़ देकर चीन से भी आगे जा सकते हैं। लाहौर में ताजरों और सनतकारों से बजट तजावीज़ हासिल करने के लिए FECCI में खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर मेहमान खुसूसी थे। FECCI के अहदेदारान ने कारोबार में दरपेश मसाइल बयान किए और FBR के नए SOPs पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हारून अख्तर खान का कहना था कि माशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। नए बजट में ऐसी स्कीम्स मुतारिफ कराई जाएंगी जिनसे मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सनती पॉलिसी भी मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। मरकज़ी अमीर जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर की नमाज जनाजा सियालकोट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वफ़ाक़ी वज़ीर हसन इक़बाल, साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी समेत तमाम मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। मौलाना अली अबू मोहम्मद तुराब को मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का कायम मकाम अमीर मुक़र्रर कर दिया गया है। प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर की नमाज जनाजा गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल कॉलेज में अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद अल्लामा साजिद मीर को ईदगाह कब्रिस्तान शहाबपुरा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कब्र पर फूल चढ़ाए गए। मरकज़ी अमीर जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर दिल का दौरा पड़ने से हफ्ते की सुबह इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 86 बरस थी। फ्रांसीसी न्यूज़ चैनल ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी और गुमराह कुन वीडियोज़ और तस्वीर को मोदी हुकूमत की पुश्त पनाही हासिल है। वाक़े के बाद AI से बनाई गई तस्वीर के जरिए हमदर्दी हासिल करने की दानिस्ता कोशिश की गई। कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग के ज़ेरे एहतमाम भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहरा किया गया। बलूचिस्तान असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ रुकन जाफ़र चाच की क़यादत में रैली का आगाज़ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से हुआ। सब्ज़ हिलाली परचम हाथों में थामे लोगों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। रैली के शुरका ने भारतीय आबी जारियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई कोयटा प्रेस क्लब के सामने पहुंची, जहां एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी जाफ़र चाच और दीगर मुकर्रीरीन का कहना था कि बलूचिस्तान की अक़लियती बरादरी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। भारत को खबरदार करना चाहते हैं कि वो किसी भी किस्म की जारियत से बाज रहे। भारत ने अगर हमले की गलती की तो भरपूर जवाब देंगे। इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्ची चल बसी। फ़ाक़ा कशी से अमवात की तादाद 57 हो गई। 9000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीका और इसराइल गजा में इमदाद की फराहमी के ऐसे निज़ाम पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें इमदाद तक हमास की रसाई ना हो। अमरीका के यमन पर ताज़ा हमले
کمران اور الحدیدہ میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ اور انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے مشترکہ اجلاس میں میڈیا پر پابندیوں، صحافیوں کے کام کرنے کی ابتر صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس سے متعلق اعلامی میں کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال نے میڈیا کے لیے ریاست کے چوتھے ستون کا کردار مشکل کر دیا۔ وفاقی حکومت پیکا ترمیمی ایکٹ فوری واپس لے۔ پیکا ایکٹ سے سوشل میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی آزادی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ پیکا ایکٹ ان قوانین کا تسلسل ہے جو برطانوی دور میں صحافتی آزادی روکنے کے لیے نافذ کیے گئے تھے۔ حکومت ان قوانین کے ذریعے ایڈیٹوریل آزادی سلب کرنا چاہتی ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے پیکا کے تحت صحافیوں کے خلاف درج تمام مقدمات واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ مشترکہ اجلاس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے خطرات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کہا دونوں ممالک کے صحافی، دانشور اور شاعر جنگ کے بجائے امن کے بیانیے کو مضبوط کریں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والے پتھاروں کو ہٹایا گیا۔ فیصل کینٹونمنٹ کے سی ای او کے مطابق گرینڈ آپریشن ناجائز تجاوزات کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ آپریشن میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔